Okay. In the previous lecture, we had discussed physical and the chemical property of nitrogen in the period Block element. Okay. Today, we will discuss anomalous property of the nitrogen, some of the chemical properties of the nitrogen, like tendency to form hydrides or reactivity toward the hydrogen, reactivity toward the oxygen, and reactivity toward the halogen. So some of the topic we will discuss today, okay, in this lecture. First is anomalous. It means different properties of the nitrogen. तो not only nitrogen, we know that कि हमें पता है कि all the element of the second period or the first element of a group, like boron in a boron family, carbon in a carbon family, nitrogen in a nitrogen family, oxygen in the oxygen family, and the fluorine in a halogen family, should a different behavior than their other elements present in a group. Then the nitrogen also showing the different behavior, okay, show anomalous behavior and different behavior than the other member of its family. Okay, why they are showing the anomalous behavior? So some of the reasons are there. Due to its small size of the nitrogen is very small, high electronegativity, high ionization enthalpy. Okay, and last is the main non-availability of d orbital or absence of d orbital in its valence shell. ठीक है, तो some of the important properties we'll discuss here कि in this chapter we discuss now. Next is a nitrogen, some of the anomalous behavior. First one is a tendency to form p pi multiple bond. Okay, तो नाइट्रोजन की अगर हम देखें तो हैज़ a unique ability to form p pi multiple bond with itself or with the other elements having a small size and high electronegativity like the carbon and the oxygen. ठीक है, and due to tendency to form p pi multiple bonds, it exists as a n2 and triple bond n. It exists as n triple bond n. Okay, तो heavier element of this group do not form p pi. Second हम लोग यहाँ करें कि the heavier element do not form p pi bond, do not form p pi bond. Their atomic orbital are so large and diffuse that they cannot have a effective overlapping. तो ये बहुत ही important topic है. हमने क्या कहा? In the nitrogen, ability to form p pi multiple bond. The n2 molecules can exist in form of n triple bond and 1 sigma bond and 2 pi bonds, है ना, and the n2 molecules are held to each other by van der Waals force of attraction. ठीक है, सो इट कैन इजीली बी ब्रोकन. और एक बड़ा कारण होता है कि जो n2 होता है हमको नेचर में गैसियस फॉर्म में मिलता है यहाँ पे. फिर हमने कहा कि अदर जो हाईवेयर एलिमेंट है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, साइज़ बड़ा है, और बिकॉज ऑफ देयर लार्ज एटॉमिक ऑर्बिटल और लार्ज साइज एंड वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होने के कारण वहाँ पे हमें क्या मिलता है? सिंगल बॉन्ड मिलता है. कैसा मिलता है वहाँ पे? सिंगल बॉन्ड्स मिलेंगे आपको वहाँ पे. पी सिंगल बॉन्ड पी सिंगल बॉन्ड पी मिलेगा आपको. सेकेंड आपको अगर हम आर्सेनिक में देखेंगे तो ए एस सिंगल बॉन्ड ए एस. ठीक है, एंटीमनी में भी हमें एस बी सिंगल बॉन्ड एस बी मिलेगा. तो एक बड़ा कारण होता है कि ये टेट्राएटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं. P4 ये पी फॉस्फोरस मिलता है इन फॉर्म ऑफ P4, आर्सेनिक मिलता है इन फॉर्म ऑफ AS4. ठीक है ना, तो ये इस फॉर्म में मिल रहा है क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं. तो ये किस फॉर्म में मिलेंगे? टेट्राएटॉमिक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलते हैं. ठीक है, ध्यान रहेगा. और इस फॉर्म के कारण ये कैसे होते हैं? रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है. ये कैसे है? सब रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है. और नाइट्रोजन क्योंकि वंडरवाल्स वीक वंडरवाल्स फोर्स से बंधा हुआ, दे आर बॉन्डेड विद द वीक वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस at the room temperature, the molecule can easily be break, so they exist, nitrogen exists in form of gas. ये anomalous properties की first property जो you have to be keep in your mind, p pi multiple bond formation tendency. Next is the anomalous property of nitrogen. Second is हमने क्या कहा और आगे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल. नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल विथ ट्रिपल बॉन्ड between the two atoms
its bond enthalpy is 941.4 kilojoule per mole, which is very high. On the contrary, phosphorus, arsenic and antimony form single bond as P already discussed, and bismuth form metallic bond. Okay, and the single NN bond is weaker than single PP bond because its high inter electronic repulsion of non-bonding electron owing the small bond length. तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हमेशा वाई एन सिंगल बॉन्ड एन इज वीकर देन द पी सिंगल बॉन्ड पी. तो वाई एन एन सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन पी पी सिंगल बॉन्ड. तो उसका आंसर यही होता है. क्यों होता है? बिकॉज ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ओइंग द स्मॉल बॉन्ड लेंथ. नाइट्रोजन में क्या है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, इसीलिए उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है एन सिंगल बॉन्ड एन की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है. ठीक है. और एक बड़ा कारण है, एक और चीज़ जब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, रिएक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करें, अगर हम सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन शुड बी मोर रिएक्टिव देन द फास्फोरस, बट इन द एक्चुअल मैनर फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन द नाइट्रोजन. रीज़न इज देयर. पूछा था कि ऐसे क्यों? तो रीज़न इज देयर कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ है, बिकॉज नाइट्रोजन इज नॉट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ सिंगल बॉन्ड, इट्स एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ ट्रिपल बॉन्ड. and bond, yeah, the bond enthalpy of the triple bond is a 941.4 kilojoule per mole, but phosphorus exists in form of single bond single p single bond single p. ठीक है. its energy is 213 kilojoule, okay, per mole. अब it indicate that कि इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है इसके बॉन्ड एंथैल्पी से क्या है, काफ़ी कम है. दैट्स वाई अगर हम रिएक्टिविटी को कंपैरिजन में करते हैं तो फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव. सिंगल पीपी बॉन्ड लेंथ इज मच वीक होने के कारण फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन द नाइट्रोजन. क्लियर? तो एक ध्यान रहेगा आपको, इसके कारण वो ज़्यादा रिएक्टिव है. ओके. फिर थर्ड वन इज नाइट्रोजन. Nitrogen cannot form d pi p pi bond as the heavier element due to the absence of d orbital. ठीक है. Nitrogen cannot form which bond? d pi p pi. d pi p pi means the pi bond between d orbital and the p orbital. So d pi p pi. Okay. p pi p pi means the pi orbital formed between two p orbitals, and when the one p orbital sidewise overlap with the one d orbital, so such a pi bonding is called d pi p pi bonding. Okay. And due to absence of d orbital in the nitrogen cannot form d pi p pi bond, but the other element, if you say other element, they can form because they have a d orbital. Okay. So one another question is arises here कि why nitrogen cannot form d pi p pi multiple bond. This is a common question. ठीक है, जो पूछा गया पेपर में कई बार. वाई नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई? बिकॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. ओके. नेक्स्ट इज अनदर वन कि नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म R3N. नाइट्रोजन, इफ यू सी द नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन doesn't form the compound like R3N double bond O type of compound or R3N double bond CH2 type of compound. Nitrogen cannot form, but the phosphorus can form. Phosphorus can form because phosphorus here is the D. In this compound there will be the d pi p pi bonding. It means the d orbital of the phosphorus and overlap with the p orbital of oxygen. So d pi p pi bonding, but such a d pi p pi bonding is not possible here. That's why this compound is not possible in nature. So doesn't the nitrogen doesn't form R3N double bond O and R3N double bond CH2. So you should be keeping in your mind. Okay. So R3P double bond O and R3P double bond CH2 is another anomalous behavior of the nitrogen is जो हमको देखने को मिलता है वो मिलता है कैटेनेशन के अंदर. सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एटम, कैटेनेशन वी नो दैट, है ना. अगर हम देखें तो ग्रुप 15 एलिमेंट जो है उनकी जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है वो कार्बन के कंपैरिजन में बहुत कम है. क्यों कम है? क्योंकि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो अगर हम देखें कंपैरिजन करें कार्बन से तो काफ़ी डिफरेंसेस मिलते हैं हमको कार्बन से नाइट्रोजन में. जैसे सी सिंगल बॉन्ड सी है तो वहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो
57 किलो जूल पर मोल है। और फास्फोरस के लिए, कार्बन के लिए लगभग फास्फोरस की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है सबसे स्ट्रांग होती है सिंगल बॉन्ड की पूरे ग्रुप में, इसलिए फास्फोरस की कैटेनेशन प्रॉपर्टी थोड़ी हमको मिलती है। नाइट्रोजन में अगर हम देखते चले तो नाइट्रोजन में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो एन सिंगल बॉन्ड एन की बॉन्ड स्ट्रेंथ है, अब जो किलो जूल में बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम है, 159 किलो जूल पर मोल। इसलिए हम यहाँ कहते हैं कि जो नाइट्रोजन है उसकी ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इज़ वेरी वीक एंड हैज़ अ वेरी लेस टेंडेंसी टू गेट फॉर्म अ लॉन्ग चेन। तो नाइट्रोजन कैन फॉर्म अ लॉन्ग चेन कंटेनिंग अप टू 3 एटम्स, जिसको हम N3H है, जिसको हम हाइड्रोजोइक एसिड कहते हैं, या एजाइड है N3 के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, वो बना सकता है, अदरवाइज तो उसमें कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती नहीं। फास्फोरस कैन फॉर्म और वी कैन से दैट फास्फोरस आर्सेनिक मोर कैटेनेटेड देन कैटेनेशन प्रॉपर्टी उसमें ज़्यादा इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये दिस इज द अनोमलस बिहेवियर एंड अनदर अनोमलस बिहेवियर इज अ कोवैलेंसी। अनदर क्या है? कोवैलेंसी। कोवैलेंसी अभी हमने कोवैलेंसी पढ़ा था कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी है? 4 है। ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, किसके एब्सेंस के कारण? डी ऑर्बिटल के एब्सेंस के कारण नाइट्रोजन कैन नॉट शो 5 कोवैलेंसी, है ना। लेकिन फास्फोरस एंड आर्सेनिक एंटीमनी अगर हम लेके चल रहे तो फास्फोरस एंड आर्सेनिक कैन शो +5 एंड द +6 कोवैलेंसी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो अनदर एनोमलस बिहेवियर। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो हम एनोमलस बिहेवियर जो हम लगातार प्रॉपर्टी देखते हैं कि नाइट्रोजन में काफ़ी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है जो दूसरे एलिमेंट में से अलग होती है। इन प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एनोमलस बिहेवियर। ओके, तो दिस इज द एनोमलस बिहेवियर ऑफ द नाइट्रोजन। नेक्स्ट इज अ reactivity toward the हाइड्रोजन। तो अगर हम देखें तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द दिस फैमिली, जितने भी हमारे पास एलिमेंट है नाइट्रोजन, अब रिएक्टिविटी टुवर्ड द हाइड्रोजन नेक्स्ट है, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड द हाइड्रोजन, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म हाइड्राइड ऑफ द EH3 टाइप। विच टाइप? EH3। तो E में E शुड बी नॉन मेट सॉरी एलिमेंट ऑफ द 15th ग्रुप N P AS SB BS में, तो दे विल रिएक्ट विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म अ hydride, trihydride, like NH3, PH3, ASH3 and SBH3. So they are the hydrides of the hydrogen. Okay, or they form which type of hydrides? Volatile trihydrides. All the element form volatile trihydrides, EH3 type. Okay, हमको यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है हाइड्राइड्स के अंदर, है ना। वी हैव टू लर्न लाइक स्टेबिलिटी हो गया, उसका एसिडिक नेचर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, एंड द बेसिक कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। दे आर द प्रॉपर्टी वी जनरली डिस्कस इन केस ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड द हाइड्रोजन और द प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्राइड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द हाइड्राइड इज अ स्टेबिलिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हमारे पास? थर्मल स्टेबिलिटी, है ना। तो अगर हम बात करें तो stability of the hydride decreases from NH3 to BH3. It means thermal stability decreases down the group. थर्मल स्टेबिलिटी बेसिकली जो डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे। किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, या हम कह सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। तो जैसे से बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी, जैसे से नीचे की ओर अगर हम चल दें ग्रुप के अंदर, हम अगर ऊपर वेज यू मूव डाउन द ग्रुप, तो साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, है ना। तो है, तो उसके कारण क्या होगा? जो टेंडेंसी है टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विद द कंपैरेटिवली स्मॉल हाइड्रोजन एटम डिक्रीजेस। तो इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कि जो एलिमेंट और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ है डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और जब उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो इट इज़ वेरी इजी टू ब्रेक इट, है ना। उसको थर्मल स्टेबिलिटी, इसलिए हम कहते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे आने पे क्या होती चली जा रही है? घटती चली जा रही है। तो जब वो घटती चली जा रही है तो इफ़ यू सी, तो सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल हमको यहाँ पे जो मिलेगा वो कौन होगा? NH3 होगा। उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे आएगा वो कौन होगा? PH3 होगा, फिर ASH3 एंड SBH3 एंड BiH3। ओके, तो थर्मल स्टेबिलिटी वो कह रहे हैं कि डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। व्हाई? बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। हियर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अमोनिया इज 389, और सबसे कम यहाँ पे हमारे पास किसकी है? एंटीमनी और बिस्मथ की है। क्लियर? तो स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड क्या हो रही है?
thermal stability decreases down the group. Why decreases down the group? Because the bond accession enthalpy decreases. Clear? नेक्स्ट है हमारे पास रेड्यूसिंग कैरेक्टर. रेड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करो तो रेड्यूसिंग कैरेक्टर भी बहुत अलग कुछ नहीं है. तो रेड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड, तो वो हमको क्या मिलेगा, वही सेम ऑर्डर मिलेगा. ठीक है. तो ऊपर से नीचे आने पे हम देख रहे हैं कि जो रेड्यूसिंग कैरेक्टर है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. इट मीन्स बिस्मथीन हाइड्राइड इज मोर रेड्यूसिंग एंड अमोनिया इज अ वेरी लेस रेड्यूसिंग. क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द group, or we can say hydride increases bond dissociation enthalpy decreases from ammonia to hydride. तो reducing character increase कर रहा है क्योंकि bond dissociation enthalpy घट रही है. ठीक है. या we can say that in other word if you say कि as you move down the group the thermal stability decreases. Thermal stability decreases, it means tendency to liberate hydrogen increases or their reducing character will increase. Okay. तो यहाँ पे हमारे पास है रिड्यूसिंग कैरेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, दो तरीके से कह सकते हैं. बिकॉज बॉन्ड, या हम कहें कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रहा है, या उसकी क्या थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सो टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन इंक्रीजेस. क्लियर है. थर्ड वन इज अ बेसिक नेचर. थर्ड वन इज बेसिक नेचर. तो जनरली जो हाइड्राइड्स है, थर्ड क्या है हमारे पास, बेसिक नेचर है. बेसिक नेचर हमने यहाँ लिखा, बेसिक नेचर डिक्रीजेज इन द ऑर्डर अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सेनिन, एंटीमोनियम, बिस्मेथन. इस ऑर्डर में दिख रहा है. क्यों हो रहा है, अब उसका कारण हम पढ़ते हैं. तो सबसे पहले तो समझो कि ये कैसे है, दे आर द लुईस बेस. वाई दे आर द लुईस बेस? तो स्ट्रक्चर अगर हम ध्यान है आप लोगों का स्ट्रक्चर, तो अमोनिया का स्ट्रक्चर हम बनाते थे NH3 इज अ ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर विथ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो जो हाइड्राइड्स है हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम. नाइट्रोजन है ना, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, दे हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दे हैव अ टेंडेंसी टू क्या है, शेयर दिस इलेक्ट्रॉन और डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन. तो दे कैन बिहेव एज अ लुईस बेस. कैसे बिहेव करेंगे वो, बिहेविंग एज अ लुईस बेस. अब हम कह रहे हैं कि जो बेसिक कैरेक्टर है डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. ठीक है. अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों डिक्रीज कर रहा है? तो वो एक सिंपल सी बात होता है कि कितनी आसानी से कोई एलिमेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है. कब करेगा, जब उसके पास हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. और हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब साइज छोटा होगा. तो एज द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीजेस. ठीक है. तो जो जैसे से हम जा रहे कहाँ से, नाइट्रोजन से बिस्मथ की, साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज लार्ज वॉल्यूम, और वी कैन से दैट द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन decreases around the central atom. So their tendency to donate a pair of electron decreases, and this is the reason why the basic character decreases from top to bottom in the reactivity in case of hydride. Clear. Next is a melting and a boiling point. So first is a boiling point. Boiling point, ammonia has higher boiling point than pH 3. अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज हायर देन pH 3. अगर हम पहले वैल्यूज़ को देख लें तो उसका कारण पढ़ लेंगे. अब देखो यहाँ पे हम देखें तो अगर जनरली एक नेचर कहता है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो इंक्रीज कर रहा है. द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज फ्रॉम फॉस्फीन टू आर्सेनिन, आर्सेनिन टू एंटीमोनिन, एंटीमोनिन टू बिस्मथ. बट एक्सेप्शनली द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज हाई. तो ड्यू टू टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी के कारण जो अमोनिया है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक्सेप्शनली क्या होता है, हाई होता है. ये एक प्री कॉमन क्वेश्चन है, व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज एक्सेप्शनली हाई. वन क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज हाइयर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फीन. तो ओनली वन लाइन आंसर इज देयर, ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया. उसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है. सेकेंड वन अगर हम देखें, मेल्टिंग पॉइंट को देखें, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर को भी अगर हम देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट में अगर हम देख रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट में देखो यहाँ पे कितना है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया 195.2 केल्विन. अब यहाँ पे है, उसके बाद देखो 139, 156. तो वो फिर यहाँ पे देख रहे तो हम अमोनिया का जो मेल्टिंग पॉइंट है इज ऑल्सो एक्सेप्शनली हाई.
तो यहाँ पे भी अगर हम उसको रीजन को समझेंगे तो वाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज एक्सेप्शनली हाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया, and due to this hydrogen bonding it has a highest melting point. ठीक है, तो वो सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान रखना। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम फॉस्फिन से क्या जा रहे हैं, एंटीमोनिन की ओर जा रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज द वाई इंक्रीजेस, क्योंकि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम की ओर जाएंगे मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीजेस, वो मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करेगा तो क्या बढ़ेगा, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, है ना। तो जैसे जैसे वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बिकॉज वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंडिंग ऑन द साइज। क्लियर। तो दिस इज द प्रॉपर्टी। और कुछ काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे जो अराइज होते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड द हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। क्लियर। नेक्स्ट इज अ रिएक्टिविटी टुवर्ड द ऑक्सीजन। क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड द ऑक्सीजन। अब हम रिएक्टिविटी टुवर्ड द ऑक्सीजन को देखें तो दे आर फॉर्म हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, तो दे जनरली फॉर्म E2O3, दे जनरली फॉर्म E2O3 एंड E2O5 टाइप ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, E2O5 है ना, तो क्या बन गया हमारे पास, ऑलरेडी रिटन हियर P2O3 एंड P2O5। ठीक है, जब E2O3 बनेगा तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +3, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +5। तो वो करेगा कि इन दिस एलिमेंट कैन शो द +3 एंड द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। तो ये है हमारे पास रिएक्टिविटी टुवर्ड द ऑक्सीजन। फर्स्ट पॉइंट कि क्या है, दे आर रिएक्टिव टुवर्ड द ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, E2O3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड एंड E2O5 टाइप ऑफ ऑक्साइड जनरली, और उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +3 एंड +5। सेकेंड, अगर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी, अब हम जैसे हमने हाइड्राइड्स में काफ़ी प्रॉपर्टी पढ़ाई की, रेड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड, एसिडिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हियर ऑल्सो विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट वन इज एसिडिक स्ट्रेंथ, फर्स्ट वन इज अ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को देखते हैं तो जो हमारे पास भी ऑक्साइड्स है, और हम जनरली हमेशा ऐसा पढ़ते आए कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक होते हैं। ठीक है, दो ऑक्साइड्स ऑफ मेटेलॉइड्स है यहाँ पर, दे आर एम्फोटेरिक एंड द मेटल्स आर बेसिक। ये जनरल कंसेप्ट है, इट्स नॉट नेसेसरी कि मेटल के ऑक्साइड हमेशा बेसिक ही होंगे। लेकिन हाँ, अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो एसिडिक कैरेक्टर को जनरलाइज करता है। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम की होगी, या हम कह सकते हैं ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट, मोर एसिडिक इज द ऑक्साइड। ठीक है, अगर हम दो अलग अलग एलिमेंट के ऑक्साइड्स को कंपेयर कर रहे हैं तो किसको कंपेयर कर रहे हैं अगर हम लोग, ठीक है, अगर दो अलग अलग ऑक्साइड्स को कंपेयर करते हैं तो हम क्या करें, द एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इट मीन्स इफ़ यू कंपेयर, अब हमारे पास क्या है, अगर हम सपोज करो कि हम कंपेयर करना शुरू करें किसको, N2O3 को एंड P4O6, इफ़ यू कंपेयर, तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं किसकी, N2O3 को कंपेयर करें विद द P4O6, ठीक है, तो अब हम पूछे कि किसकी विच वन इज़ मोर एसिडिक, तो हमको पता है कि अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो नाइट्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द फास्फोरस। और हम क्या करें कि डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफ़ यू कंपेयरिंग द ऑक्साइड, सेम ऑक्साइड ऑफ द टू डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, इन दैट कंडीशन आप हमेशा कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, द एलिमेंट विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैविंग मोर एसिडिक कैरेक्टर, दोज एलिमेंट हैविंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, तो दिस वाई हियर इज N2O3 इज मोर एसिडिक देन P4O6 इन, और ओके। अनदर क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन चेंज कर दे कि नाउ वी हैव अ P4O6 एंड AS4O6, विच वन इज मोर एसिडिक, तो अब देख के समझ में आ रहा है कि यस, फास्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आर्सेनिक, तो ऑब्वियसली P4O6 इज मोर एसिडिक देन AS4O6। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है, तो ऑक्साइड्स ऑफ यहाँ पे देखना है। ठीक है, क्लियर है ना। और हमने यहाँ पे कहा ऑक्साइड ऑफ E2O3 ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर प्योरली एसिडिक, एंटीमनी बिस्मथ, दे आर द मेटेलाइट्स।
तो उनका एम्फोटेरिक है। एंड बिस्मथिन ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में। क्लियर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि अगर हाँ फिर हम आप एसिडिक कैरेक्टर में सेकेंड पॉइंट अगर हम पढ़े तो हम कहते हैं कि अगर हाँ एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड्स ले हम, तो वहाँ पे है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को वी कैन नॉट कंपेयर बिकॉज बोथ द सेंट्रल एटम आर सेम। अगर हमने यहाँ पे लिया P2O3 एंड P2O5, ठीक है, या अगर हम यहाँ पे ले रहे तो अगर हम यहाँ पे ले रहे या P4O6 एंड P4O10 ले रहे सपोज, तो अब अगर हम उस केसेस के अंदर लेके चल रहे तो या फिर अगर हम N2O और NO ले रहे N2O3 ले रहे तो इन दैट कंडीशन यू हैव टू calculate the oxidation state of the central atom, क्योंकि higher the oxidation state more will be the acidic character। ठीक है, more will be the acidic character। कब करेंगे, जब एक ही एलिमेंट के अलग अलग ऑक्साइड्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखो कुछ एग्जांपल लिया कि हमने क्या लिया P2O3 एंड P2O5 और वी कैन से दैट P4O10 एंड P4O6 एंड P4O10। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि अब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है +5 और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक है, +3। तो हम कह रहे हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा एसिडिक होगा और जिसका कम होगा वो कम एसिडिक होगा। क्लियर। अगर हम आपको कुछ अलग एग्जांपल दे दें, सपोज हम आपको दे दें कि ना यू हैव N2O5, ओके, एंड यू हैव N2O3, विच वन इज़ मोर एसिडिक। तो ऑब्वियसली हियर अगर आपको नहीं देख के समझ में आ रहा है, फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे हम भी N2O3 में कैलकुलेट करो, N2O5 में करो। हमने पहले भी डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन स्टेट, N2O5 में ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो वहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर N2O5 का N2O3 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो दिस इज़ द रिएक्टिविटी टूवर्ड द ऑक्सीजन। ठीक है, मेनली जो यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म होता है वो एसिडिक नेचर पे ही होता है। तो और एसिडिक नेचर को आपको ध्यान रखना बहुत अच्छे से। और दूसरी बात याद रखनी है कि इसमें कौन एसिडिक है, कौन मेटेलेट एम्फोटेरिक है और कौन से बेसिक है। क्लियर। अब आ जाओ, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है रिएक्टिविटी टुवर्ड द हैलोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड द हैलोजन, तो दिस एलिमेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड द हैलोजन, तो दिस एलिमेंट रिएक्ट्स विद द हैलोजन टू फॉर्म EX3 एंड EX5। अगेन वहाँ पे EX3 EX5 का कंसेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा। EX3 मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, EX5 मतलब हम वट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो EX3 इज़ अ +3, EX5 इज़ अ +5। So suppose example is PCl3 and the PCl5, okay, here is the +5 and here is a +3। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स है हमारे पास। तो ऑन बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट EX3 एंड EX5 टाइप्स ऑफ हैलाइड्स आर पॉसिबल। क्लियर। दूसरा पॉइंट है कि नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहाइलाइड। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्यों नहीं बनाता, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द D ऑर्बिटल, कैन नॉट फॉर्म पेंटाहाइलाइड। इसमें भी हमें कोई शक नहीं है। ओके, दो तरीके के हमने यहाँ पर ट्राईहेलाइड्स और पेंटाहेलाइड्स है, तो हेलोजन की डिस्कशन हम करना ही हमको। तो उसके बाद हम देखें तो फिर नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट है, पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राईहेलाइड। ठीक है, अब कोवेलेंसी डिपेंडिंग ऑन द पोलराइजेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, पोलराइजेशन पे डिपेंड करता है जब हम कोवेलेंसी को डिस्कस करते हैं। और सॉरी, कोवेलेंट कैरेक्टर, नॉट कोवेलेंसी, सॉरी, कोवेलेंट कैरेक्टर को हम डिस्कस करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द पोलराइजेशन। और अगर हम उसको सिंपल वर्ड्स में पढ़े तो दिस इज ड्यू टू कि दोज एलिमेंट हैविंग अ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर एक ही एलिमेंट के पेंटाहेलाइड्स है और टेराहेलाइड्स है तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इज मोर कोवेलेंट देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो पेंटाहेलाइड +5, ट्राइहेलाइड +3, दैट्स व्हाई पेंटाहेलाइड इज मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड ड्यू टू द फैक्ट पेंटाहेलाइड इज ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट वाइल इन द केस ऑफ ट्राइहेलाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्यों, क्योंकि +5 में क्या है, मोर पोलराइजिंग पावर है, एंड +3 में क्या है, उसकी मोर पोलराइजिंग पावर कम है, तो वो लेस कोवेलेंट होगा इन कंपेरिजन टू पेंटाहेलाइड्स। क्लियर है। तो ये हमारे पास है रिएक्टिविटी टुवर्ड द क्या हैलोजन। ठीक है, तो ये हैलोजन के साथ रिएक्टिविटी, सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। फिर हाँ, एक कॉमन क्वेश्चन हम पढ़ चुके। अगर हम लुईस एसिड की बातें कर रहे हैं, अगर हम वहाँ पे PCl3 दे दें आपको, ASL3 दे दें और SbCl3 दे दें, या हम PF3 और PCl3 दे दें आपको,
और आपसे पूछा जाता है कि नाउ आप उसको कंपेयर करो कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो वी कैन कंपेयर द एसिडिक, जैसे हमने पहले एसिडिक में कंपेयर किया था। जैसे PCl3 ASCl3 है, तो विच वन इज़ मोर एसिडिक, सराउंडिंग एटम्स आर सेम ClCl। तो अगर वहाँ पे हम किसको ले रहे, PCl3 को ले रहे, और हमने क्या लिया दूसरा ASL3 को लिया, ASCl3 को लिया, तो यहाँ पे ClCl सेम है। अब फिर हम अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना चाह रहे हैं तो कंसेप्ट वही सेम होता है, चाहे ऑक्साइड हो चाहे हैलाइड्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये दोनों की नेगेटिविटी देखो, विच वन इज़ मोर नेगेटिव, ऑब्वियसली फास्फोरस इज मोर नेगेटिव, तो विच वन इज़ मोर एसिडिक, PCl3 इज मोर एसिडिक देन ASCl3, है ना। तो एक आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी, जो आप धीरे धीरे अगर हम उसको कंपैरिजन कर रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, तब आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है। हाँ, अगर हम कंपैरिजन करें बेसिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन करें, जैसे NF3 NCl3, तो रिएक्टिविटी और भी हम पढ़ेंगे, तो ये एक एसिडिक स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, रिएक्टिविटी टुवर्ड द मेटल, इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, रिएक्टिविटी टुवर्ड द मेटल है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 कैन रिएक्ट विद द मेटल, ठीक है। दे फॉर्म अ विच टाइप ऑफ कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड मतलब एक नॉन मेटल सॉरी एक एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 15 और एक मेटल, दोनों आपस में कंबाइंड होंगे, कंपाउंड बना लेंगे, ठीक है। आराम से कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है, और जनरली अगर आप देखो तो सब में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट। तो यहाँ पे तो बाइनरी कंपाउंड क्या बना रहा है, बाइनरी कंपाउंड मिल रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास ये है -3 है, और क्या बनेगा CH3N2 CH3P2 AN3, ये आपके कंपाउंड बनते चले जाएंगे। मैग्नीशियम बिस्मिथाइड, सोडियम आर्सेनाइड और जिंक एंटीमोनाइड, तो ये बाइनरी कंपाउंड फॉर्म करता है विद द मेटल। क्लियर। तो दे आर द प्रॉपर्टीज विद द किसके साथ है, मेटल के साथ, ठीक है। दे आर द प्रॉपर्टी। तो ये टोटल प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि एनोमलस बिहेवियर, रिएक्टिविटी टुवर्ड द हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड द ऑक्सीजन एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड द हैलोजन, दे आर कॉल्ड जनरल ट्रेंड। और हमने एक पढ़ा एक जनरल ट्रेंड इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली। क्लियर। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने बीच बीच में डिस्कस किए कि इस पे ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डजंट फॉर्म पेंटाहेलाइड। वो ऑक्सीडेशन स्टेट तो +5 दे रहा है, लेकिन वो पेंटाहेलाइड नहीं बना रहा, बिकॉज उसकी जो क्यों नहीं बना रहा, तो उसका कैंसर तो हम लोगों ने पीछे बना ही लिया, ठीक है, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, तो 5 कोवेलेंट बॉन्ड वो उसके लिए दिक्कत होगी उसको बनाने। PH3 हैज़ अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया, क्यों नहीं है, बिकॉज वी नो डैट एमोनिया में क्या मिल रहा है हमको, हाइड्रोजन बॉन्ड मिल रहा है, PH3 फॉस्फोरस अनेबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ऑब्वियसली वहाँ पे अमोनिया जो है वो किसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा विद द PH3। थर्ड क्वेश्चन है, वाई आर पेंटाहेलाइड ऑफ फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड। अभी हमने कहा कि जो कोवेलेंसी किस पे डिपेंड करती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के क्यों होता है, बिकॉज दे आर मोर पोलर मोर कोवेलेंट। तो जो पेंटाहेलाइड्स है इज ड्यू टू पोलराइजेशन, दे हैव द मोर पोलर एंड द मोर कोवेलेंट देन द ट्राइहेलाइड्स। क्लियर है। Why is BH3 is the strongest reducing agent among all the hydrates of the group 15? Because why? Because हम जैसे से ऊपर नीचे आ रहे क्या हो रहा था, reducing strength के लिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बॉन्ड स्ट्रेंथ। जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, साइज इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, बॉन्ड एंथैल्पी बिकम लेस, बॉन्ड ब्रेक इजीली कैन ब्रेक इजीली। तो बिस्मथ हाइड्राइड का बॉन्ड क्या होगा, बहुत आसानी से ब्रेक होगा, दैट्स वाई इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट। ओके, थैंक यू।